मेल्स में इनिशियली दे स्टार्ट लूजिंग हेयर इन द साइड्स लाइक दिस, देन स्टार्ट लूजिंग हेयर इट हियर. फीमेल्स में यू सी द पार्टीशन बिकम्स मोर वाइडर. का मतलब एक क्रिसमस ट्री जो होता है ना, ऐसा ऐसा वाइड हो जाता है. मांग थोड़ा बड़ा हो रहा है आपका, नहीं तो साइड्स में थोड़ा पतला हो रहा है, तभी हम बोल सकते हैं कि हाँ जरूर इनको हेयर फॉल हो रहा है. जब हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है तब भी बाल झड़ सकते हैं आप. हेयर स्ट्रेटिंग जो हीट रॉड यूज कर रहे हैं की वजह से क्या होता है कि अगर आपका बाल दिन में 100 झड़ रहा है, सोचो सो आपको कितना वापस आना चाहिए. व्हेन यू आर combing or when you are washing your hair daily basis में you can lose up to 50 to 100 strands. But if it goes beyond that, हेलो नमस्कार, आप सबको स्वागत है इस टॉक पर. आज हम हेयर फॉल मतलब बाल झड़ना और स्किन केयर इश्यूज, हमारी त्वचा के जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में डिस्कस करने आए हैं. और इसके लिए हमारे साथ है डॉक्टर सुजाता, जो फादर मुल्लर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर है और वो इस बाल झड़ना और स्किन केयर कंप्लेंट्स को ट्रीट करने में 15 साल का तजुर्बा है. मैम, आपको इस शो में स्वागत है. thank you. Ma'am, we'll ask you a few questions, simple questions which normally people will have doubts about hair fall and other skin related diseases. So what exactly is this hair fall, ma'am, and what is the normal amount of hair fall? Hair fall is also known as alopecia or baldness. It's mainly caused by the interruption of the body hair cycle. So normally 50 to 100 का मतलब जब आप comb करते हो, when you're combing or when you're washing your hair daily basis में you can lose up to 50 to 100 strands. So that is said to be normal. So the only thing you have to worry when you feel that your partition, so the partition when we take it here, when the partition when it gets wider or you're losing a hair on the top of your head or you're losing your hair at the sides में, then it becomes a concern and then you need to seek a specialist. Okay ma'am, तो आप बताइए कि ये हेयर फॉल एग्जैक्टली क्या होता है, मतलब कितना हेयर फॉल होना चाहिए कि उसको डिसीज बोल सकते हैं? So normally जब हम वॉश करते हैं, जब हम कोम करते हैं डेली बेसिस में 50 to 100 बाल झड़ना नॉर्मल बोल सकते हैं हम लोग. So but if it goes beyond that, so when it goes beyond that, when you feel that your partition, so the partition here becomes more wider, or when you feel that your ponytail, because people will come and tell me that earlier they used to use a little maybe a thick hairband, now they're using a smaller hairband, which so shows that the density has become much lesser. Or when they feel that the hair loss in the top of the head, they're losing more hair, then we can take it as a concern and then we can consult the doctor. तो 50 से 100 तक तो नॉर्मल है, उतना बाल झड़ना तो नॉर्मल है. उससे ज्यादा झड़ना, उसके लिए हम दवा ले सकते हैं और स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं आप. अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि नॉर्मल हेयर फॉल के अलावा अगर आप मांग जो बोलते हैं ना हम लोग, सो मांग थोड़ा बड़ा हो रहा है आपका, नहीं तो साइड्स में थोड़ा पतला हो रहा है बालों आपका, नहीं तो आप जब चोटी बनाते हैं वो पहले से अभी थोड़ा पतला लग रहा है, नहीं तो मर्दों में जो बोलते हैं कि टॉप पोर्शन में, सो क्राउन रीजन बोलते हैं ना, उधर बाल थोड़ा सा पतला हो रहा है, तभी हम बोल सकते हैं कि हाँ जरूर इनको हेयर फॉल हो रहा है और डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट चाहिए, ऐसा हम ले सकते हैं. ओके, तो मैम इतना हेयर फॉल होने के लिए कौन से सब कारण होंगे? So the hair fall is something which each and every one of us might have gone through it at some point of time in our life, isn't it? So the main causes, if you can say, the first and main foremost factor would be genetic reason. So the hair loss is caused by the hereditary. It runs in the families. The second reason you could say hormonal. So when you say it's hormonal based, so the hormones imbalance, जब hormones imbalance होता है तब भी बाल झड़ सकते हैं आपको. For example, I can give you maybe a woman who has delivered recently. So delivery के बाद में, that's a main and most common symptom or common cause which patients will come and tell you in the clinic. After deliveries, a thyroid problem or PCOD problem or during menopause. So during menopause क्या होता है कि ईस्ट्रोजन हार्मोन है, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, they will start little reducing it because the menstruation will stop. So during around menopause also you will start seeing the hair fall. And nutritional deficiencies like your protein deficiency, your iron deficiency, vitamin D deficiency, vitamin B12 deficiency भी कारण होता है. Certain medications like contraceptive pills, एंटी डिप्रेसेंट्स, कैंसर के बाद में जो दवाई हम लोग लेते हैं ना, वो कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद में वो भी कारण हो सकते हैं बाल झड़ने के लिए. और स्ट्रेस फैक्टर्स, यू नो, मेजर लाइफ इवेंट्स कुछ हुआ, फैमिली में किसी क्लोज रिलेटिव्स मौत हो गए, नहीं तो एनी काइंड ऑफ मेजर इलनेसेस, रिसेंटली वी हैड कोविड, you know, or some kind of viral fevers like dengue, typhoid fevers and all these things के बाद में भी बाल झड़ने के लिए कारण हो सकता है. ठीक है, सो सिर्फ सिर का बाल झड़ना सिर्फ उसको एलोपेशिया बोलते हैं मैम, या मतलब बाकी मतलब आईब्रोज का कम होना
उसको भी हम एलोपेशिया ही बोलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ हेयर फॉल्स है, हेयर लॉस हो सकता है। एक है उसमें एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं। इन दिस देयर इज अ हेरिडिटरी फैक्टर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट और मेजर रोल इन दिस। मतलब हमारे माँ बाप से जो मिलता है, जेनेटिक जीन्स में जो रन होता है, और फैमिलीज में भी इट रन्स इन द फैमिलीज। अगर आपको पापा को बॉल्डनेस है, आपका अंकुल को है, चाचा को है, डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द केसेस आपको आई मीन इट रन्स इन द फैमिलीज में। एंड इसमें मेल पैटर्न बॉल्डनेस होता है और फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस भी होता है। का मतलब इन मेल्स में, मर्दों में अगर आप देखें तो ये जो पैटर्न है उसको एम शेप पैटर्न बोलते हैं। सो इनिशियली दे स्टार्ट लूजिंग हेयर इन द साइड्स लाइक दिस, देन स्टार्ट लूजिंग हेयर इट हियर। वो एम शेप में होता है इसलिए ओके ओके, इट्स कॉल्ड मेल पैटर्न बॉल्डनेस बोलते हैं। फीमेल्स में यू सी द पार्टीशन बिकम्स मोर वाइडर। का मतलब एक क्रिसमस ट्री जो होता है ना, ऐसा ऐसा वाइड हो जाता है। सो दैट यू कॉल इट एज अ फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस। सो नेक्स्ट कंडीशन इज एलोपेशिया एरिएटा. It is an autoimmune disease. Here immunity targets your hair follicles. So then you start losing your hair in patchy hair losses में, जो कॉइन जैसा राउंड हेयर फॉल होता है ना, उसको एलोपेशिया एरिएटा बोलते हैं। आपने जो पूछा है वो उसको पूरा बॉडी में अगर हेयर फॉल हो सकता है, यस हो सकता है, उसको हम एलोपेशिया यूनिवर्सालिस बोलते हैं। इसमें नॉट ओनली योर स्कैल्प हेयर, का मतलब नॉट ओनली बाल जो सर पे है, बट ऑल्सो योर आईब्रोज, आपका आई लैशेस जो है, जो बॉडी का जो बाल है और जो प्राइवेट पार्ट्स में भी जो बाल है, वो पूरा बॉडी का बाल जो भी है वो भी जड़ सकता है, वो भी ऑटो इम्यून की वजह से। इसका एज लिमिट ऐसा कुछ भी नहीं है, छोटे बच्चे से बड़े लोगों तक हो सकता है। सो दिस इज कॉल्ड एलोपेशिया यूनिवर्सालिस। मैम आपने एक वर्ड यूज किया अभी, फॉलिकल बोल के, वो एग्जैक्टली क्या होता है फॉलिकल? फॉलिकल्स का मतलब हेयर रूट्स, जो जड़े होते हैं ना उसमें से, फ्रॉम द हेयर फॉलिकल्स, हेयर का रूट, बल्ब से हेयर रूट ग्रोथ होते हैं। सो ये हेयर फॉलिकल्स नहीं तो हेयर रूट्स विल गिव ब्लड सप्लाई, नरिशमेंट, सभी उसके रूट से ही मिलता है उनको। एक क्वेश्चन है मैम, हम बोलते हैं कि अगर शेव करेंगे मतलब पूरा बाल निकालेंगे तो नेक्स्ट जो बाल आते हैं वो बहुत मतलब थिक और घना रहता है, वो सही है कि या इट इज अ मिथ? क्योंकि अगर हम बाल शेव करने के बाद में ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जब आप शेव करते हैं ना, यू आर शेविंग ओनली द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द हेयर। जो भी रूट है, जो भी उसका फॉलिकल है, वो स्किन के अंदर ही रह जाता है। सो स्किन के जो अंदर है वो एज यूजुअल नॉर्मली जितना आपका ग्रोथ रेट है बाल का, उसके हिसाब से वो बढ़ जाता है। स्किन कंप्लेंट मतलब त्वचा के जो कोई कंप्लेंट, डिसीजेस आएंगे तो हेयर फॉल होता है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि जो कंडीशंस है, सोरियासिस बोलते हैं हम लोग को, स्पेसिफिकली सेइंग स्कैल्प सोरियासिस बोलते हैं। ये भी एक ऑटो इम्यून डिसीज होता है। सो इसमें क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना, वो उसका थोड़ा ज्यादा ही ट्रिगर होके हमारा जो स्किन को जो साइकिल होता है उसको ज्यादा प्रोलिफरेट, का मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसका ग्रोथ, स्किन का जो सेल का ग्रोथ होता है वो बहुत बढ़ जाता है। सो हियर व्हाट हैपेंस इज इन स्कैल्प सोरियासिस इज योर स्किन साइकिल गेट्स ट्रिगर बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यूनिटी। The skin cell starts proliferating much at very rapid pace and you'll start seeing the scaling, और नहीं तो flaking बोलते हैं, जो सिल्वर जैसा दिखता है सर पे। So you call it as a scalp psoriasis. So because of that also you can have a hair loss. उसके बावजूद सेबोरिक डर्मेटाइटिस, जो हम लोग कॉमन में उसको डैंड्रफ बोलते हैं ना, वो भी और एक बहुत इम्पोर्टेंट और कॉमन वजह है, जो मेन कॉज, वेरी गुड, यस, कॉमन कॉज जो हेयर फॉल के लिए, वो भी एक वजह हो सकता है। मैम कॉस्मेटिक्स कुछ प्रॉब्लम करता है मतलब कौन? अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अभी ये जो लोग जो है, जिनको स्ट्रेट हेयर है उनको कर्ली बाल चाहिए, जिनको कर्ली बाल है उनको लोगों को स्ट्रेट बाल चाहिए, ऐसा हो गया ना हमारा ये जो न्यू जनरेशन जो भी है। सो जो भी आप केमिकल्स यूज कर सकते हैं, जो स्ट्रेटनिंग में लगाने में, नहीं तो पर्मिंग लगाने में, जो भी केमिकल्स है, जो भी हेयर स्ट्रेटनिंग जो हीट रॉड यूज कर रहे हैं, सो ये इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो हेयर में एक केराटिन, एक प्रोटीन होता है। अच्छा। तो उसमें एक जो भी बॉन्ड्स है, जो भी वो हमारा हेयर को बने रखते हैं, वो उसका ब्रेक हो जाता है। उसकी वजह से हेयर का टेक्सचर डैमेज हो जाता है। सो उसकी वजह से बाल बहुत झड़ता है अभी। ओके मैम, तो अभी होम्योपैथी में क्या दवा है इस हेयर फॉल और स्किन कंप्लेंट्स को? क्योंकि आजकल की दुनिया में हेयर फॉल और स्किन कंप्लेंट्स बहुत कॉमन है, सबको है, तो होम्योपैथी व्हाट डज दैट हेल्प?
I mean, how does homeopathy help? See, homeopathy has a very effective treatment for hair as well as for skin condition, क्योंकि हम लोग जो ट्रीट करते हैं we don't ऐसा जो सिम्टम्स को हम लोग ट्रीट नहीं करते हैं, जो रूट का मतलब जो जड़ों तक जाके उसको क्यों हेयर फॉल हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल एक इंसान ने I'll give you an explanation, maybe I can narrate you a case history for you. Okay. Recently there was a patient at a hospital. She suffered a divorce. She suffered a divorce. It was very bad divorce. So divorce के बाद में उसको क्या हुआ कि उनका बाल झड़ना बहुत इतना शुरू हो गया कि उसका more than 50% ऑफ हेयर वॉल्यूम जो था वो उसका लॉस हो गया था. सो हम लोग होम्योपैथी में क्या है कि वी टेक अ होलिस्टिक अप्रोच का मतलब वी कंसिडर पर्सन एज ए कंप्लीट होल. सिर्फ हेयर फॉल नहीं, उसका जो कारण है एग्जैक्टली एड्रेस करते हैं. सो इफ द हेयर फॉल इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनल ग्रीफ, उनके लिए एक नेट्राम्यूर एक होम्योपैथी दवाई है. इफ हेयर फॉल इज कॉज्ड ड्यू टू द एनी काइंड ऑफ प्रीमेच्योरली का मतलब छोटे बच्चे में बाल जड़ रहा है, नहीं तो छोटे बच्चे में बाल सफेद हो रहा है, उसके लिए एक लाइकोपोडियम एक होम्योपैथी मेडिसिन है. ऐसा कारण के ऐसा पर्सन के ऊपर हम लोग जो मेडिसिन है हमको हम टेलर मेड बोलते हैं का मतलब वी गिव मेडिसिन बेस्ड ऑन दैट पर्सन. ऐसा नहीं है कि अगर आपको बाल जड़ रहा है, मेरे को बाल जड़ रहा है, हम दोनों को सेम दवा नहीं मिलेगा. सो आपका पर्सनालिटी के हिसाब से आपका जो मतलब हमें जब हेयर फॉल होगा और आपको जब हेयर फॉल होगा तो हाँ, दवा तो डिफरेंट होगा, एक ही दवा नहीं होगा. ओके. आपका जो कारण है, आपका बॉडी जो रिएक्ट करता है, मेरा बॉडी जो रिएक्ट करता है, इट विल बी डिफरेंट लेवल्स. ओके. सो आप बोल रहे हैं कि होम्योपैथी में है इसके लिए सोल्यूशन. देयर आर नो साइड इफेक्ट्स. सो आप आराम से आप ले सकते हैं दवाई के लिए. अच्छा, कितना टाइम लगेगा मैम ये दवा लेके और रिजल्ट हमें देखने में? Usually it takes 3 to 6 months time to see any considerable changes or improvement. Okay. But it depends upon जो underlying cause जो है. अच्छा. अगर आपका बाल ऐसा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से जड़ रहा है का मतलब खाना ठीक से आयरन का कम है. अच्छा. नहीं तो विटामिन डी का कम है. अच्छा. सो इन दैट केसेस में यू विल सी अ लिटिल इम्प्रूवमेंट लिटिल फास्टर लेवल में. और आप जो मेडिसिन जो हमने दवाई दिया है वो आप ठीक से ले रहे हैं, ठीक से खा रहे हैं. सो दिस ऑल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होगा. तो मैम आप बताइए कि ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में हेयर फॉल के लिए क्या प्रोसेस क्या है उसमें? पहले जो भी इंसान आता है कि हेयर फॉल की वजह से जो भी प्रॉब्लम है उनका हम पहले हिस्ट्री पूरा लेते हैं कि क्या वजह है उनका प्रॉब्लम, क्यों बाल जड़ रहा है, सब पूरा हिस्ट्री लेके उसके बाद में जो स्कैल्प को एग्जामिन करके उसके बाद में हम जो होम्योपैथी दवाई मैंने आपको बोला था, सो दैट वी गिव इट इंटरनली. सो इंटरनली हम दवाई देते हैं और एक्सटर्नली सर को अप्लाई करने के लिए टू इम्प्रूव द स्कैल्प कंडीशन इम्प्रूव करने के लिए. सो जो एक्सटर्नली दवाई भी होता है और इंटरनली के लिए भी दवाई होता है. हाँ, अलॉन्ग विद दैट डाइट चेंजेस, जो भी डाइट में जो चेंजेस है और हेयर मैनेजमेंट, हेयर को कैसा संभालना है, कैसा उसको मेंटेन करना है, सब हम बताएंगे, एडवाइजेस देंगे. मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट हम बताएंगे उन लोगों. सो इंटरनल मेडिसिन मतलब आप जो गोलियां देते हैं, पिल्स जो बोलते हैं, ओके, वो देते हैं. उसके अलावा कुछ है मैम इंटरनली आप? वही अगर आपको ये थोड़ा एनी डेफिशिएंसीज है तो वो डेफिशिएंसीज के लिए भी हमारा होम्योपैथी दवाई है. अनीमिया के लिए और इन जो भी डेफिशिएंसी है उसके लिए हमारा दवाई है. उसके साथ साथ जो हेयर फॉल का रीजन क्या है उसके साथ साथ वो भी हम दवाई दे देते हैं. ठीक है. एक्सटर्नली आपने बोला एक्सटर्नल मेडिसिन, वो उसमें क्या सब आता है, मतलब सिर्फ हेयर ऑयल वगैरह? हाँ, एक जो मेडिसिन जो है तूजा है और सेबाल सेरुलेटा है. सो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप देखें तो जेनेटिक, मैंने बताया था ना आपको हेयर फॉल का रीजन, जेनेटिक रीजन होता है. उसमें एक जो हार्मोन का कन्वर्शन DHT बोलते हैं हम. सो दिस तूजा और सेबाल सेरुलेटा साइंटिफिकली प्रूव्ड दैट दे आर DHT इनहिबिट करते का मतलब उसको DHT इनहिबिटर्स बोलते हैं. ओके मैम, तो आप बता सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट है जो हम डायरेक्ट शॉप से ले सकते हैं? जरूर है. मुल्लर्स होम्योपैथी प्रोडक्ट है, उसमें आर्निका हेयर ऑयल है. सो ये आर्निका हेयर ऑयल हेल्प्स इन इम्प्रूविंग आपका जो स्कैल्प कंडीशन को इम्प्रूव करता है और स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन में भी इम्प्रूव हो सकता है. सो ये प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं. कोई और प्रोडक्ट है मैम आर्निका हेयर ऑयल छोड़ के? जरूर है. जो मदर टिंचर्स बोलते हैं हम लोग, सो जो जैसा तूजा हो जाए, सेबाल सेरुलेटा हो जाए, जबरांडी हो जाए, सो ये जो मदर टिंचर्स है, सो इसको आप 1:2 रेशो का मतलब ये आपने 10 ml आपने मदर टिंचर लिया
20 ml आप कोकोनट ऑयल में नहीं तो नारियल तेल में मिक्स करके रात को मसाज करके स्कैल्प को अच्छा सा नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप शैम्पू से वॉश कर सकते हो। मैम आप बता सकते हैं कि मतलब हेयर आना मतलब ग्रो होना और उसको झड़ना उसके बारे में कुछ बता सकते हैं, ग्रोथ के बारे में हेयर का? जरूर इसको हम हेयर साइकिल बोलते हैं। अच्छा। इस हेयर साइकिल में 4 फेजेस होते हैं। पहला जो फेज है उसको हम ग्रोथ फेज बोलते हैं। ये ग्रोथ फेज जो है 3 to 5 years में उसका ड्यूरेशन 3 to 5 years होता है। इस ग्रोथ फेज में जो हमारा फॉलिकल्स बोलते हैं नहीं तो हम रूट्स बोलते हैं ना, उसमें से हमको बाल आते हैं। सो द हेयर ग्रोज फ्रॉम द हेयर फॉलिकल्स नहीं तो हेयर रूट से बाल ग्रोथ होता है। सो नेक्स्ट फेज इज ए ट्रांसेशन फेज। इस फेज में क्या होता है कि ग्रेजुअली जो रूट्स को जो ब्लड सप्लाई जो हो रहा है वो ग्रेजुअली कम हो जाता है। सो जब ब्लड सप्लाई बाल को कम होने की वजह से क्या होता है, बाल श्रिंक हो जाता है। सो कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है ना, मेरा बाल 3 महीने से पहले थोड़ा थिक था, घने थे, अभी थोड़ा पतला हो रहा है। सो पतला होने के लिए एक रीजन होता है कि ब्लड सप्लाई कम हो रहा है, आपका बाल का ब्लड सप्लाई कम हो रहा है। इसको हम ट्रांसेशन फेज बोलते हैं। सो ये लगभग 2 to 4 weeks 2 से 4 हफ्ते तक हो सकता है। थर्ड फेज हम रेस्टिंग फेज नहीं तो शेडिंग फेज, जो बाल झड़ने का फेज बोलते हैं। सो ये फेज लगभग 3 to 5 months तक होता है। इस फेज में जो भी हेयर फॉलिकल्स के ब्लड सप्लाई कम हो गया उसकी वजह से बाल झड़ जाता है। और फाइनल फेज जो है उस फेज में वो फिर से बाल रीग्रोथ हो जाता है। सो ये फिर से बाल रीग्रोथ होना 6 to 12 months तक होता है। सो अब फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ, ग्रोथ फेज 80% होना है और 20% बाल झड़ना है। सो एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपका सर में 80% बाल ग्रोथ में होगा और 20% बाल शेडिंग में रेस्टिंग में होगा या हेयर फॉल में होगा। ओके। अगर आपका बाल दिन में 100 झड़ रहा है, सोचो आपको कितना वापस आना चाहिए? 80 बाल वापस आना चाहिए। तो तभी आपका रेशियो जो ग्रोथ और फॉलिंग का रेशियो जो मेंटेन हो जाएगा। जितना बाल आपको झड़ रहा है उतना उसमें से एटलीस्ट 80% आपको ग्रोथ होना है। जब ये ग्रोथ फेज 80% से कम हो जाए का मतलब ग्रोथ फेज हैज बिकम लेसर एंड लेसर, फॉलिंग फेज बढ़ जाएगा ना। अच्छा, जब ग्रोथ कम हो रहा है तो क्या बढ़ रहा है? आपका फॉलिंग बढ़ रहा है। सो व्हेन द फॉलिंग फेज इंक्रीजेस देन यू स्टार्ट नोटिसिंग द पार्टीशन इज बिकमिंग मोर वाइडर एंड दिस साइड्स में बाल पतला हो जाना, आपका जो पोनी है वो भी कम हो जाना, आप जो चोटी बनाते हैं वो भी कम हो पतला हो जाना। ये सब चीज जब आप देखते हैं ना, वही इंडिकेशन है कि आप आके डॉक्टर से मिलो। हमें थोड़ा टिप्स दे सकते हैं हमें और हमारे व्यूअर्स के लिए, मतलब हेयर कैसे ग्रो करना है, कैसे मेंटेन करना है? फर्स्ट थिंग इज जो बाल को वॉश करने में अगर आपका स्कैल्प ऑयली स्कैल्प है तो जो स्कैल्प ऑयली स्कैल्प का मतलब जो स्कैल्प में ऑयल प्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ऑयल तेल प्रोडक्शन स्टिकी जो है, और उसकी वजह से डैंड्रफ भी हो सकता है ना। अच्छा। सो जो अगर आपका स्कैल्प जो ऑयली स्कैल्प है, ऑल्टरनेट डेज का मतलब हफ्ते में 3 बार नहीं तो 4 बार आपको माइल्ड शैम्पू यूज करके, वो शैम्पू भी थोड़ा शैम्पू लेके डाइल्यूट करके पानी में बाद में वॉश करने का। अगर आपका स्कैल्प ड्राई है तो हफ्ते में 2 बार वॉश करना काफी है। सो उसके साथ साथ आप डाइट में भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। थोड़ा सा आयरन रिच फूड का मतलब डेट्स हो जाए और पालक हो जाए और बहुत ज़्यादा फ्रूट्स हो जाए, सभी आप इंक्लूड कर सकते हो। और टू मेंटेन स्ट्रेस, दैट्स आल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब हम माइंड को थोड़ा शांत रखना है, हैप्पी रहना है, खुश रहना है। उसके साथ अच्छे से खाना भी खाना है और बालों में मसाज भी करना है और अच्छे से वॉश भी करना है सर। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू सो मच फॉर द टिप्स। बहुत अच्छा लगा आप जो यहाँ आके इतना इन्फॉर्मेशन दिया, हमारे व्यूअर्स के लिए इतना इन्फॉर्मेशन दिया। और हेयर फॉल और हमारे ये जो त्वचा का जो है डिसीजेस वो बहुत बढ़ रहा है और आपके इस सेशन की वजह से हमें बहुत जानकारी मिली है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। So thank you to all the viewers. Don't forget to like, comment, share and also subscribe. If you have any doubts, please come back to this page and don't forget to ask your doubts in the comments. Thank you so much.